Assalamualaikum students. Today we will start our new chapter and we will start chapter number 1, unit 1, that is problem solving. Before this we have studied second chapter and third chapter, that was of binary system and your data privacy, not networks. Okay, all right, networks. Okay, now we will start our unit number 1, that is of problem solving. This is a bit conceptual chapter about a few terms. First of all of you should know what actually problem solving is. So you can see a short introduction of problem solving over here. That problem solving is the process of solving complex problems. This unit introduces the methodologies to understand a problem and solve it in an effective manner. So what are they saying? That problem solving is a process. Problem solving एक process है that is capable of solving the complex problems. The problem might be your daily life problem, or it might be in the terms of softwares. Here we will study about the problems in the terms of softwares. That stakeholder होता है जो बंदा आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है. That a stakeholders comes to you and he wants a that you will make a software for him. Now what the problem is, what actually he wants, and what is your prescription or what is your analyzation, you will all study about it and then you will reach towards a particular solution. Okay, so let's start our first chapter. Topic number 1.1, problem solving steps. In order to solve a problem, it is important to follow a systematic approach. In the following, we discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically. Now, for solving a particular problem, you have to follow a systematic approach. Systematic approach means that you follow the certain steps. Different steps को आपने follow करोगे तो फिर आपकी problem solve हो जाएगी. So you need to follow a systematic approach. Now there are different steps to solve a problem. Problem solving की definition उसने a bit सबसे ऊपर introduction में one line में बता दी है. उसके बाद अब वो steps की तरफ आ रहा है कि what steps you will follow that you can solve, then you can solve the problem easily. So the first step for solving a problem is defining a problem. अब ये steps बड़े important हैं, बड़े गौर से सुनिएगा. Defining a problem. A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities. All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. अब वो कहते हैं कि एक जो प्रॉब्लम होती है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्यूटीज. उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटीज नहीं होती, कोई मिस्टेक्स नहीं होती, कोई गलतियां नहीं होती, कोई रेपिटेशन नहीं होती, कोई इस तरह की चीज नहीं होती. ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड. तो जितनी कंडीशंस होती हैं, जितने टर्म्स टर्मिनोलॉजीज जो कुछ होता है, अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर है तो फिर क्या होगा, वो सारा कुछ क्लियर होगा. जो आपका गोल है, स्पेसिफिक गोल है जिसको आपने लेकर चलना है, जहां से आपने अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन की तरफ जाना है, दैट वुड बी क्लियर. So defining a problem is easy to understand and easy to solve. आपकी बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन अ प्रॉब्लम. आप प्रॉब्लम डिफाइन करोगे, आप समझोगे इस बात को कि जो मेरी प्रॉब्लम मेरे पास आई है वो एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, तो फिर ही आप उसके रिक्वायर्ड सोल्यूशन की तरफ जा सकते हो ना. अगर आपको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही, देन हाउ यू विल रीच टुवर्ड्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. So first of all, you will define a problem properly. Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not. If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. Now, now they are saying that you have to define the problem. You have to see that whether the problem that has arisen to you is well defined or not. कि आपकी जो problem आपके पास आई है वो well defined है भी या नहीं है. And if the problem is not well defined, you will follow the following strategies. ये कुछ strategies उसने बताई हैं, कुछ तरीके उसने आपको बताए हैं कि इनको अगर आप follow करेंगे, then you can define your problem more clearly. First step, gain background knowledge. We try to know the situation and circumstances in which the problem is happening.
In this way, we can identify the given state. It also helps to know what a good solution will look like, how we shall be able to measure the problem. Now, first strategy to solve a problem is to gain the background knowledge. आपने अब ये देखना है कि जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, ये अराइज कहाँ से हुई है, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसके सर्कमस्टांसिस क्या थे, किन वजूहात की वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम आई है. सो यू हैव टू सी ऑल ऑफ दीज स्टेप्स. Now, then after seeing all these circumstances, all the situation, you can identify the given state. आप अपनी problem को identify कर सकोगे, and it also helps to know what a good solution will look like. Now, if your problem will be well defined, if your all the situation circumstances you have gone through all of them, then you can reach towards a good solution. Next strategy is use guesses. We try to guess the unknown information through appropriate guesses. These guesses may be based upon our past experiences. अब वो कहते हैं अब आपने प्रॉब्लम को गेस करना है. गेस करना है कि आपने देखना है कि किस क्या आपकी जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उसमें क्या आपने अपनी तौर से गेस करना है कि क्या आपकी इंफॉर्मेशन है, अननोन जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से आप अगर इंफॉर्मेशन लगाते हो उस प्रॉब्लम के ऊपर तो आप अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाओगे. आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखना है कि पास्ट में भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं. इफ सो यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स, देन यू विल अप्लाई अ फ्यू गेसेस. के हो सकता है कि आपका जो गेस लगाते हो उससे आपका आंसर जो प्रॉब्लम है जो वो वेल डिफाइंड हो जाए और आप रिक्वायर्ड सोल्यूशन की तरफ पहुंच सको. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ पिक्चर. अब आपने क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है. थर्ड स्ट्रेटेजी टू सॉल्व डिफाइन अ प्रॉब्लम. Draw a picture. If the problem is not well defined, we can draw a picture and fill the undefined information. वो कहते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, देन यू माइट ड्रॉ अ पिक्चर. आपने अपनी प्रॉब्लम की एक पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन. तो जहां पर आपको लगता है कि यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन गायब है, ये यहाँ मुझे और कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए थी ताकि मेरी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, जो आपकी अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन है उसको आपने फिल आउट कर लेना है बाय यूजिंग द concept of picture. Figure 1.1 shows pictorial representation of a problem. अब वो कहते हैं कि ये जो figure 1.1 उसने यहाँ पर बनाई हुई है, you can see over here, it is showing the pictorial representation of problem. अब एक pictorial picture की form में वो information आपकी वो problem दिखा रहा है. अब आपने इसका आंसर बताना है. First of all, do you know Albert Einstein said, if I were given 1 hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. बहुत अच्छी उसने बात की है यहाँ पे. वो कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर मुझे कोई प्लेनेट को सेव करने की कोई प्रॉब्लम मिलती तो फिर मैं क्या करता, 1 hour मुझे मिलता, कोई एक प्लेनेट पे को सेव करने के लिए मुझे 1 घंटा अगर दिया जाता, तो मैं उस 1 घंटे में मतलब 60 मिनट्स में 59 मिनट्स में यही सोचता रहता कि मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या. मैं अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करता रहता एंड 1 मिनट रिजॉल्विंग इट, और सिर्फ 1 मिनट में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता. ये बड़ी अच्छी उसने कंसेप्चुअल बात यहाँ पर की है कि आपकी जो प्रॉब्लम है अगर वो वेल डिफाइंड होती है तो आपको उसके सोल्यूशन की तरफ पहुंचने में कोई मसला नहीं होता. और अगर आपकी प्रॉब्लम ही वेल डिफाइंड नहीं है, देन यू माइट टेक अ कपल ऑफ आवर्स टू सॉल्व इट, मगर फिर भी आप रिक्वायर्ड सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुंच पाते. नीचे उसने लिखा है, रिमेंबर पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. कोटेशन है ये. वो कहते हैं पिक्चर जो होती है वो वर्ड से ज्यादा बोलती है, मतलब पिक्चर से ज्यादा कंसेप्ट आपको समझ आता है एज कंपेयर टू वर्ड्स. मतलब बोलने खाली अगर आपने बोले जा रहे हो, आपके पास कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ नजर आपको नहीं आ रहा, तो आपके कंसेप्ट जो है वो इतने क्लियर नहीं हो सकते अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग दैट यू आर वॉचिंग अ पिक्चर. Now, figure 1.1, problem shown in a picture form. Can you solve this? Now, in first, there are three horses in black color ke. 1, 2, 3, and they are solving these. They are adding these 3 horses, and they are getting the answer 30. वो कहते हैं तो फिर हर horse की value क्या होगी? 10 होगी. 10 plus 10 plus 10, that would be equal to 30. अब वो कहते हैं एक हॉर्स है, उसके बाद उसके पास 2 कपल ऑफ मैग्नेट्स हैं, 2 मैग्नेट्स हैं. तो हॉर्स की वैल्यू ऊपर क्या थी आपके पास? 10 थी. अब नीचे आपके पास एक हॉर्स की वैल्यू तो 10 हो गई. अब आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर 18. अब ये 18 लाने के लिए आपके पास इन दोनों की क्या वैल्यूज होनी चाहिए? 4 + 4 होंगी तो 8 बनेगा ना, और हॉर्स आपका 10 हो गया, तो 10 +
4+4 कितना हो गया, 18 हो गया, 10+8 18 हो गया। अब वो कहते हैं कि 2 मैग्नेट्स आपके पास आ गए, उसमें से माइनस करना है आपने 2 शूज को, तो फिर जो आपकी वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। अब वो किस तरह होगा, अब देखें यहाँ पर, अब मैग्नेट की वैल्यू ऊपर हमने कहा था कि 4 है, यहाँ पर से 4 आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 आ गई। अब 4 में से माइनस करेंगे, कितने माइनस करेंगे कि आपका आंसर 2 आए, 4 में से हम 2 ही माइनस करेंगे, तो जो शूज है वो 2 शूज है, तो 2 शूज की वैल्यू 2 है, तो आपका आंसर 2 आ गया। अब वो कहते हैं 1 शू है आपके पास, अब 1 शू की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 2 शू की वैल्यू 2 हो रही थी, 1 शू की वैल्यू दैट वुड बी 1। अब 1 को प्लस करना है, हॉर्स की वैल्यू क्या है, 10 है, सॉरी, 1 + 10 11, 11 को आपने मल्टीप्लाई करना है मैग्नेट के साथ। अब एक मैग्नेट की वैल्यू 2 थी, दोनों की 4 थी, और इधर सिंगल आएगा तो 2 थी, तो 1 + 10 11 हो गया, 11 × 2 क्या आएगा आपका आंसर, 11 2 = 22। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा हुआ है उसने, तो यहाँ पर योर आंसर शुड बी 22। ओके, next step of problem solving is to understand a problem. Understanding a problem, it is important to understand the problem before jumping into the solution of the problem. For example, a riddle or a puzzle can be answered only after clear understanding. A clear understanding of the problem makes it easier to solve and helps to save money, time, and resources. Understanding of a problem usually includes identification of the 5 W's: what, who, when, where, and why. Problem analysis is the process to figure out these 5 W's from a problem statement. Problem analysis helps to understand a given problem. There are the basic elements which leads towards the solution of a given problem. अब वो कहते हैं सेकंड स्टेप आपका आ गया अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब पहला स्टेप तो हो गया था, आपकी प्रॉब्लम जो थी आपने उसे डिफाइन कर लिया, ठीक है ना, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब आपने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, तो it is important to understand a problem. So basically it is very important to understand the problem before jumping to the solution of the problem. अब आपकी प्रॉब्लम डिफाइन तो हो गई, अब आपको पता चल गया ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरे पास प्रॉब्लम अराइज हुई है। अब आपके पास जो प्रॉब्लम अराइज हुई है आपने उसे समझना है, आपने उसे अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम आई है वो एक्चुअली प्रॉब्लम आपको किस तरह से, आपको उसके फेजेस से गुजरना है, तो आप रिक्वायर्ड सोल्यूशन की तरफ पहुंच सकोगे। एग्जाम्पल उसने दिया यहाँ पर एक पजल की या रिडल की, वो कहते हैं कि अगर इफ यू वांट टू सॉल्व अ पजल, सो यू कैन ओनली आंसर द पजल इफ यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पजल। अगर आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ सकते हो कि ये जो पजल उसने दी है वो किस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, या अगर कोई नंबर्स वो दे रहा है तो कितने नंबर्स का गैप आ रहा है, कितनी कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो अगर आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लोगे, then you might reach towards the best solution in minimum time. अब वो कहते हैं clear understanding of the problem makes it easier to solve and helps to save money, time, and resources. So if you are having a clear understanding of the problem, you can save your money, you can save your time, and you can save your resources as well. आप अपने resources को भी save कर सकते हो। अच्छा, नाउ वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम यू हैव टू गॉन थ्रू 5 W's। 5 W's से आपने गुजरना है, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो अंडरस्टैंड, आप क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। एंड व्हाट आर द 5 W's? 5 W's आर व्हाट, who, when, where, and why। ये 5 जो वर्ड्स W से आपके बनते हैं, इन 5 वर्ड्स को आपने अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना कि जो आपकी प्रॉब्लम आई है उसमें ये 5 W's की क्या वैल्यू है। अगर पहला वो कहता है व्हाट मीन्स क्या, एक्चुअली व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। हु हु इज इन्वॉल्व इन योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम में कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। एंड व्हेन, कौन, कब आपकी प्रॉब्लम अराइज हुई है, या कब आपके इस प्रॉब्लम से आपको सामना करना पड़ रहा है, व्हेन योर प्रॉब्लम हैज अराइज्ड। फोर्थ वन इज वेयर कहाँ से आपकी प्रॉब्लम जनरेट हुई है, क्या उसके सर्कमस्टांसेस थे। एंड व्हाई, और क्यों आपकी प्रॉब्लम आई है। तो ये जो 5 W's हैं, दीज 5 W's आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। Okay. Problem analysis is the process to figure out these 5 W's.
From the problem statement, problem analysis helps to understand a given problem. अब वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम एनालिसिस होती है वो इन 5 Ws को अगर आप फॉलो करो, इन 5 Ws को, तो फिर ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो एनालिसिस है उसका बड़े अच्छे तरीके से यू कैन फिगर आउट योर all problems. Problem analysis helps to understand a given problem. There are the basic elements which leads towards the solution of the given problem. अब वो कहते हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, आपने अपनी प्रॉब्लम पे एनालिसिस करना है that what is your given problem and how you will reach towards the required solution. तो आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, सोचोगे उसके बारे में, उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करोगे, डीकम्पोज करोगे, डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डीकम्पोज करोगे अपनी प्रॉब्लम को, then you will reach towards the best solution. Now they have given a simple example over here. अच्छा, ये फिगर सी द फिगर 1.2 फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन. अब वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी उसने यहाँ पर भी एग्जांपल दी है ट्रैफिक सिग्नल की. दैट इज वन ऑफ योर डेली लाइफ एग्जांपल. एग्जांपल है यहाँ पर रेड लाइट है, तो दैट मींस दैट यू हैव अराइज्ड अ प्रॉब्लम, कोई आपको प्रॉब्लम आई है. अब जब वो येलो लाइट होती है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो एनालिसिस के फेज में चली जाती है. जब वो आपको कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लें, ठीक है ना, तो जो येलो लाइट होगी तो वो एनालिसिस का फेज स्टार्ट हो गया. और जब वो ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का, देन यू मे स्टार्ट योर कार. ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब वो कहते हैं ये एक प्रॉब्लम आपके पास अराइज हुई है, अब आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. एक एग्जाम्पल अब वो यहाँ पर आपको दे रहे हैं. Suppose your class teacher assigns you a task to prepare a list of students in your school whose names start with letter A. अब वो कहते हैं आपकी जो क्लास टीचर है उन्होंने आपको एक टास्क असाइन किया है. वो कहती हैं कि आपने स्कूल की एक लिस्ट बनानी है, पूरे स्कूल के बच्चों की लिस्ट बनानी है, और उन बच्चों के नाम लिखने हैं आपने इस लिस्ट के अंदर जिनका जो फर्स्ट नेम है वो ए से स्टार्ट होता है. फर्स्ट जो लेटर है नाम का वो ए से स्टार्ट होता है. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students, and there is only 1 week to complete the task. अब वो कहते हैं कि क्यों बना रहे हैं, ये क्यों टास्क दिया उन्होंने. दैट इज दे हैव गिवन द टास्क दैट बिकॉज द स्कूल वांट्स टू प्रिपेयर अ अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स. अब अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी मतलब ए से जो बच्चे एनरोल्ड हैं वो ए से पहले आए, फिर बी से आए, सी से, डी से, इस तरह से एक पूरी डायरेक्टरी स्कूल वालों ने क्रिएट करनी है बच्चों के नाम से. एंड देयर इज ओनली 1 week टू कंप्लीट दिस टास्क. इस काम के लिए आपको पूरा बस एक हफ्ता दिया गया है जो आपने ए टू जी आपने मूव करना है. तो स्टार्ट वो कहते हैं कि जो टास्क बच्चों को दिया गया वो ये दिया गया कि सिर्फ आपने लेटर ए को लेकर चलना है. अब ये आपके पास प्रॉब्लम आई है, अब आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करोगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है और उसके सोल्यूशन की तरफ आपने किस तरह जाना है. So we can analyze this problem by identifying 5 Ws in the problem statement as given below. अब वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 5 Ws को लेकर चलना है. 5 Ws हमारे पास क्या है? What, who, why, when, where. What, who, why, when, where. सबसे पहले है व्हाट. अब व्हाट के अंदर हम क्या चीजें लिखेंगे? व्हाट के अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए व्हाट को सॉल्व करना है. व्हाट के अंदर हमने क्या, हमें क्या चाहिए एक्चुअली, हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट के अंदर हम ये चीज लिखेंगे. व्हाट के आगे उसने क्या लिखा? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए. तो जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं उन सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर आनी चाहिए. मतलब ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है. हु, किन बच्चों के, किन के साथ डील कर रहे हैं आप? स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, बच्चों के नाम आपने लिखने हैं. वाई, क्यों आप लिखना चाहते हो बच्चों के नाम? टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल वालों ने बच्चों की एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है. व्हेन, कितनी देर का काम है आपका, कितना टास्क, आपको टाइम रिक्वायर्ड क्या है? विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर. वेयर, कहाँ पर बैठकर आपने काम करना है? तो स्कूल आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, स्कूल में बैठकर आपने ये सारा काम करना है. ओके. Figure 1.2 shows the metaphorical representation of problem where the red light presents a problem, the yellow light represents its analysis, and the green light presents the solution. It shows the problem analysis makes us closer to a solution. अब वो यही बात जो अभी मैंने आपको ऊपर ये ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल एक्सप्लेन की है, वही बात यहाँ पर वो कर रहा है कि जब रेड लाइट थी तो दैट वाज योर प्रॉब्लम. व्हेन द लाइट हैज कन्वर्टेड टू येलो, then you have started the analysis phase of the problem, and when the light becomes green you have reached a particular solution. अब ये जो क्लास की ये जो बच्चों के नाम की एग्जांपल थी, तो यू कैन सी ओवर हियर दैट बाय कंप्लीटिंग द 5 Ws यू कैन रीच टुवर्ड्स द बेस्ट सोल्यूशन. अब आपके पास इन 5 Ws को फॉलो करते हुए आप अपने बेस्ट सोल्यूशन की तरफ पहुंच सकोगे.
Activity number 1.1. Students are put in groups of 2 or 3 and each group is provided two different lists of student names. One list contains the marks of students in mathematics subject while the other list is for physics subject. Each group is supposed to prepare the following list. Top 5% students in mathematics, top 5% students in physics, students having more than 90% marks in both exams, both subject. Identify 5 W's for the problem. Now you have to solve this activity at your home. अब आपने खुद से पेपर लेना है और उसके ऊपर ये अपनी एक्टिविटी आपने देनी है. You may take the screenshot if you are not having the books right now of activity number 1.1. तो then you will identify the 5 W's. अब ये आपके पास प्रॉब्लम है कि 5% स्टूडेंट के नाम आपने लिखने हैं जो बेस्ट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मैथ्स में टॉप किया, जिन्होंने फिजिक्स में टॉप किया, और उन बच्चों की आपने लिस्ट बनानी है जिनके अंदर जिन्होंने दोनों मार्क्स जो है, दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनमें 90% मार्क्स लिए हैं. तो आप अपनी तरफ से कोई भी बच्चों के नामों की लिस्ट ले सकते हो, कोई भी मार्क्स लिख सकते हो. You have to assume the problem. Okay. Basically you have to identify the 5 W's of this problem. के 5 W's में when, where, who, what, ये सारी जो चीजें हैं ये आपने इसमें आइडेंटिफाई करनी है. ओके. नाउ थर्ड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्लानिंग अ सोल्यूशन. अब आपने अपने सोल्यूशन को प्लान करना है. अब थर्ड प्रॉब्लम आपके पास आ गई कि आपने अपने सोल्यूशन को किस तरह से प्लान करोगे. ओके. There is a pictorial diagram again over here. Planning for success. सक्सेस की तरफ आपने अगर जाना है तो किस तरीके से आपको क्या पजल्स को सॉल्व कर रहा है वो बंदा जो एक यहाँ पर उसने बनाया हुआ खड़ा हुआ है, और वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलेगा तो वो सक्सेस उसे मिल जाएगी. Planning a solution. After analyzing a problem, we formulate a plan that may lead us towards the solution of a problem. This phase includes finding the right strategy for problem solving. Some of the strategies are divide and conquer, guess, check and improve, act it out, prototype means draw. Okay, 4 solution. अच्छा, वो कहते हैं कि अब आप सेकंड स्टेप जो था आपका, वहां पर आपने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया. आफ्टर यू हैव एनालाइज योर प्रॉब्लम, यू फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. वो कहते हैं अब आपने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज तो कर लिया है, तो अब जो आपका क्या होगा कि आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की तरफ जो है वो आप जाना शुरू हो जाओगे. दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब वो कहते हैं कि आपको इस फेज में पता चलेगा कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है. आपकी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो गई, आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया. अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन का प्लान करना है कि अगर मैं सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन मैं बेस्ट सोल्यूशन कौन सा चूज करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम जो है वो सही से मुझे रिजल्ट उसका प्रॉपर मिल जाएगा. सो डिवाइड एंड कनकर इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी to solve a problem. सबसे पहले है divide and conquer. This strategy divides a complex problem into smaller problems. अब वो कहते हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया, तो अब आप क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम जो आपके पास आ गई, जो एक्चुअल आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लोगे. मतलब जो बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आई है ना, उस प्रॉब्लम को आपने छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. अब देखें, जो चीज आपके पास एक बड़ी इतनी काफी बड़ी फॉर्म में थी, उसको आप नहीं सॉल्व कर सकते थे. तो अगर इफ यू विल डिवाइड दैट प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लेंगे, then it would be easier to solve that problem as compared to a bigger problem. So this is one of the strategy to solve a problem. Second strategy is guess, check and improve. The designer guesses a solution to a problem and then checks the correctness of the solution. If the solution is not according to expectations, then he or she refines the solution. The refinement is an iterative process. अब वो कहते हैं कि आप क्या करें, अपनी जो प्रॉब्लम है उस पर गेस करें कि अगर मैं ये सोल्यूशन लगाता हूँ क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. और इफ यू हैव गॉन थ्रू अ पर्टिकुलर गेस ऑफ द प्रॉब्लम, then you will check that whether the correctness of the solution, कि आपने जो गेस लगाया इससे आप जो है करेक्ट सोल्यूशन की तरफ पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे. और if the problem is not according to your if the solution is not according to your required problem or your required expectations, then you might refine the problem. तो फिर आप क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम को, अपने सोल्यूशन को दोबारा से रिफाइन करोगे.
ठीक है, अब ये सोल्यूशन की बात हो रही है, प्रॉब्लम तो आपके पास क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन के लिए आपने गेस अप्लाई करना है, उस गेस को आपने चेक करना है, उसकी करेक्टनेस आपने चेक करनी है कि वो करेक्ट आपको रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। एंड इफ द सोल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस, देन यू विल रिफाइन द प्रॉब्लम, रिफाइन द सोल्यूशन। ओके, दिस रिफाइनमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। अब जो रिफाइनमेंट होगा ये आइटरेटिव प्रोसेस होगा, मतलब आप उसे रिपीट करते रहोगे टास्क को। मतलब एक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज किया, उससे नहीं रिजल्ट मिला, आपने दोबारा दूसरा यूज करना है, तीसरा यूज करना है। ओके, next is act it out. In this strategy, the designer defines the list to do task after he or she performs the task. Act it out में वो क्या कहते हैं, to do list आपने बना लेनी है एक, मतलब ये आपके बेसिक आपने की ये सोल्यूशन की तरफ पहुंचने के लिए ये चीजें आपको चाहिए, या इन इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। And the last one is prototype, means draw. This technique draws a pictorial representation of the solution. It is not the final solution. However, it may help a designer to understand the important components of the solution. वो कहते हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है उसकी आपने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेनी है, आपने एक पिक्चर बना लेनी है। इसके अंदर क्या होगा, दैट वुड नॉट बी योर फाइनल सोल्यूशन, ये आपका फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा, मगर इससे क्या होगा कि आपके जो सोल्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकोगे। जैसे अभी हमने ऊपर हॉर्स वाली एग्जांपल देखी थी, उसमें जब उसने डायग्राम बना ली तो हम अपनी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, एज कम्पेयर टू अगर वो नंबरिंग की फॉर्म में हमें दे देता। The selection of the strategy depends upon the problem. It is quite important that one strategy may be more suitable to implement a solution than the other one. Very specifically, the selection of the strategy depends upon the nature of the problem. Now, what are they saying? They're saying that all of these strategies depends upon the nature of the problem. What you are going through, what phases you are going through. कौन सी आपकी प्रॉब्लम जो है, either the problem you are trying to solve is of daily life problem, is of software based problem, what's the nature of your problem. These all solutions depends upon the nature of the problem. आपने प्रॉब्लम कौन सी है उन सारी उसको देखोगे तो फिर आप इन चारों में से कोई भी एक सोल्यूशन अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। ओके, फॉर टुडे इट इज ऑल अप टू पेज नंबर 4। आज हम सिर्फ पेज नंबर 4 तक ही चलेंगे।